about hopefully we will have a in-person class tomorrow. I'm really looking forward to that. So let's just continue. We have just very little short lecture, so let's continue with our technical side of the course. And we were talking about input port and output port. And for input port, we use a buffer that connects to the outside world for a very short time, and we get a glimpse of the output and store that in the register. For that's for input. For output, we use a register. So whatever we write to the register, it stays there for the output word until we write a next value. We can't really write for a very short while and assume that the outside will be able to recognize that. So we have to write something at the output port and give it sufficient time for whoever is going to read it. And then we write a new value. So these are basically what are called input and output ports. So as I said, the processor PIC 18F46K22 that we are going to use in the lab has 4-5 input and output ports that already have these AND gates and certain memory locations assigned to them. So you don't have to worry about what memory locations are in them. So they are these are called port A, port B, port C, port D, port E, and their addresses are already defined in the header file for that microcontroller, what memory location on which this big state catcher is basically used inside the processor. Definitely there is a state catcher which does that. And यार आज साफ नहीं किया आप किधर गया वो आया नहीं आज कर देता होते साफ चले कोई नहीं so next topic would be how to design it's not always that we have ports that are already designed as input ports and output ports because that restricts the overall versatility of the processor. It does not remain very versatile. So for example, you want an application where you want 32 outputs. So if you have a processor which has 2 ports as an input and 2 ports as an output, you won't be able to use that processor for 32-bit output. So the solution to that is अब सीधा हो गया ना ये solution to that is to design what is known as a configurable port. A configurable port is a port which you can configure according to your hardware. So usually the hardware is connected first to the processor in the design, and then we decide which port is to be going to be an input port and which port is going to be an output port or part thereof. So basically you can have half the port as input, half the port as output, or 1 bit as input, 7 bits as an output, and so on. So very versatile design. So how do they make configurable port? Hello, Junaid, क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने ये पूछना था कि configurable port आपने कहा हाफ इनपुट होती है हाफ आउटपुट होती है सर ये कैसे मतलब
उसके हाँ अंदर जी मैं रजिस्टर वो दोनों स्वैप करते हैं आपस में वो? हाँ, नहीं हाँ यही करता है, यही करता है, अच्छा एग्जैक्टली ठीक है। यही होता है। कैसे होता है यही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ़िगरेबल जीपीआईओस। कॉन्फ़िगरेबल, ये डिजाइन ही वाले मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, सैडली ये किसी बुक में से मिलेंगे नहीं आपको। अ, आप सर्च करके देखें, इस तरह के डिजाइन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बट आई टीच दिस बिकॉज आई वांट माय नथिंग टू बी लेफ्ट टू इमेजिनेशन व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोसेसर, सो देयर शुड बी नथिंग लेफ्ट टू इमेजिनेशन। यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, अदरवाइज आप में और हाल रोड के किसी माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम करने वाले में कोई फर्क नहीं रहेगा। सो कॉन्फ़िगरेबल जीपीआई पोर्ट में व्हाट यू हैव इज बेसिकली, अगर आपको याद हो, वी कम बैक टू दिस वेरी यूजफुल डिवाइस। दिस इज अ ट्राई स्टेट बफर। So the property of this tri-state buffer, as I said many time, is that it is when a enable is one, it is short circuit, electrically short circuit, and when it is enable is zero, it is electrically open circuit. No current can flow between these two. So how do we use these? These are very important. It's like you have a river, a gateway from where you want. Sometimes you want water to flow in this direction, and sometimes you want water to flow in this direction. And you don't want, when the water is flowing in this direction, you don't want this water to flow and come back. So this should be totally shut off. So when the water is flowing from this direction to this direction to this direction of flow should be stopped, and vice versa. So how do they do it? This tri-state buffers are typically what they use. I will tell you what is called a bit slice model. It is often used in system design or circuit design. Bit slice model is that you just uh, show one bit circuit and you assume that being repeated over and over again. For example, this is an output port circuit, simple one D flip flop. And then you have this output port circuit, you have this uh, read slash write signal buffered over here, and you have this coming from uh, big AND gate, state catcher. I have written here D0, D1, D0, out 0 to the outside world. So this is a bit slice model. If I want to make an 8-bit port, I just repeat this circuit 8 times with the same clock, then it will become an 8-bit circuit. एक बिट का मैंने ये सर्किट दिखा दिया, तो 8 बिट का क्या सर्किट होगा? तो 8 बार कर दो। 8 इस तरह के सर्किट लगा दूंगा, 8 का तो ये 8 का पोर्ट बन जाएगी। अगर मैंने 16 बिट की एक पोर्ट बनानी है किसी बड़े प्रोसेसर में, लाइक इंटेल का जो है x86 है 32 बिट पोर्ट और 8 बिट 16 बिट पोर्ट, तो मैं बिट स्लैश मॉडल में कुछ भी नहीं मुझे करना। आई नो कि मैं इस तरह के रिपीट करूंगा, कितनी दफा करूंगा रिपीट 16 बिट पोर्ट के लिए, कितनी दफा रिपीट करूंगा? 16 टाइम्स करेंगे सर, ये तो एक हाँ पोर्ट का है। 16 टाइम करेंगे तो ये 16 बिट
पोर्ट्स, और दिस इज कॉल्ड अ बिट स्लाइस मॉडल, कि एक बिट का मैं मॉडल शो कर दूं तो बाकियों का आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह, इस तरह से। सर ये कैमरे की ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई है, नजर नहीं आ रहा बोर्ड पे क्या लिखा है, अब नहीं नजर आ रहा कुछ भी यार। ऑटो ब्राइटनेस इसकी सेट हो गई है। है। वैसे सर जो अभी आपने बोर्ड पे ड्रॉ किया था, जो आप कहते हैं एक बिट के लिए है, वो आपका बिट स्लाइस मॉडल था? हाँ, वो बिट स्लाइस मॉडल था। ठीक है। ये अब वो क्या एक हुआ है, स्टेट को मैं आगे कैच, आऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। सर आपके होने से बेहतर हो गया सर। अब बेहतर हो गया ना, ठीक है, बस सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ना छेड़ना यार, अब सही है। ओ फिर खराब हो रहा है। सर आप मैं डांस करने करता हूँ तो खराब होता है, मेरा ख्याल है। सर फिर आज क्लास कैंसिल कर देते हैं सर, वो मतलब डांस कैमरा ही नहीं देखते हैं जा आप रहा। मेरा, वाह रे वाह। सर मतलब आखिरी ऑनलाइन क्लास है हमारी सर, मतलब इतना तो हम डिजर्व करते हैं। थैंक्स फॉर द विशफुल थिंकिंग, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेट्स सी, इसका ऑटो खत्म करें। हाँ, ठीक है, बस सही है, इसका भी ऑटो खत्म करें, और वो ब्राइटनेस वाइट ऑटो वाइट बैलेंस कम करें कि ये नजर आए क्या लिखा हुआ है, ज्यादा करें, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। कलर ब्राइटनेस कम करें, कलर इंटेंसिटी छेड़ें जरा, कम करें। नहीं, ये क्या सीन है भाई। हैं? अभी तो सही था यार, बंद कर दें इसको, इस, इसको रीसेट करें, देखें कुछ करें इसका ना। अब सही है। ये लाइट्स का सीन लग रहा है मुझे। राइट, हाँ। अब मैंने आगे नहीं जाना, बस ज्यादा नहीं जाऊंगा आगे, तो जूम कर दें थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज अ बिट स्लाइस मॉडल for input output port. Similarly, if I draw interesting, देखिए जरा क्या करने लगा हूं। If I draw this circuit, now this is a bit slice model for an input circuit with a tri-state buffer.
and this is again D0, and this is in 0. Now to make a configurable port, what do I have to do to make a configurable port? सर रीड और राइट को वेरी करना पड़ेगा आपको। नहीं, रीड एंड राइट को वेरी नहीं करने से भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इसमें कोई डाटा राइट हुआ हुआ है तो वही इनपुट आने से कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैं इन दोनों को जाके आपस में कंबाइन करने लगा हूं। सर वैसे बिफोर यू मूव एनी फर्दर, यहाँ पे आपने ट्रांसलेट बफर कहाँ पे यूज किया? अच्छा वो ठीक है, वो सॉरी, आई एम सॉरी। एक मैं बफर यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक मैं बफर यहाँ पे लगा रहा हूँ। सर एक बफर आपने नीचे जो इनपुट है उसका जो बॉक्स बनाया है उसमें नहीं लगा हुआ सर जी? राइट, हाँ जी, हाँ जी। जो नीचे आपने बॉक्स बनाया हुआ है इनपुट के आगे, उसमें भी बफर नहीं लगा हुआ? दो बफर साथ साथ हो गए? दो बफर साथ साथ हो गए, ये बफर भी एक आ गया, ये भी एक आ गया, दो बफर साथ साथ हो गए हैं। सर जो बॉक्स बना हुआ है पीछे, ये वाला ना, हाँ जी ये वाला। इसमें भी बफर है, लेकिन इसका कंट्रोल तो इधर से आ रहा है, इसका कंट्रोल कहां से आ रहा है? ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेयर इज कंट्रोल कमिंग फ्रॉम दीज बफर्स। तो ये तो उन्हें जो डिसाइड करेगा कि इनपुट लेनी है या आउटपुट लेनी है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है ये? जैन? जी सर। माशाल्लाह, आप तो बड़े लायक हैं यार। आप क्या छुट्टियों में क्या खाते रहे हैं यार? बहुत जी सर जबरदस्त। हमारा हमारा सर। यार थोड़ा सा ख्याल करें, ये इनको किसी का सर खाने का शौक नहीं है, ये सिर्फ जो है ना वो सिरी पाए खाते हैं। ऑलराइट, so let's go here and uh, use another circuit here. ये इन्वर्टर है, ये बफर नहीं है। कंट्रोल, अब ये कंट्रोल क्या करता है कि अगर कंट्रोल 1 है तो इसकी आउटपुट आपको आउटसाइड वर्ल्ड में मिलेगी, और अगर ये कंट्रोल 0 है तो ये कट ऑफ है, और उस वक्त ये कनेक्ट हो जाएगा। इस वक्त आपको आउटसाइड वर्ल्ड से इनपुट आप ले सकते हैं। तो ये दो स्टेट बफर हमने डायरेक्शन कंट्रोल के लिए रख दिए। क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन कंट्रोल है, क्या हार्डवेयर बताती है कि इस डायरेक्शन क्या क्या रखना है। अगर यहाँ पे मैंने एलईडी लगाया हुआ है तो मैं इसको 1 कर दूंगा, और अगर यहाँ पे मैंने कोई स्विच लगाया हुआ है तो मैं इसको 0 कर दूंगा, ताकि स्विच का स्टेटस इधर से मुझे रीड हो सके, D0। ये आपकी मेरी कॉमन बस, इधर से डाटा इधर को जा रहा है, इधर से डाटा इधर को आ रहा है, इधर से डाटा इधर को जा रहा है, इधर से डाटा इधर को जा रहा है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर में ये नहीं हो सकता कि मैं जब अपना प्रोडक्ट बना लूं तो मैं यूजर से कहूं कि अब यहाँ से एलईडी उठा लो, यहाँ पे स्विच लगा दो। अब यूजर से कहूं यहाँ से ये उतार लें, वो लगा लो। इस तरह नहीं होता। हार्डवेयर जब एम्बेडेड सिस्टम में बन जाती है तो वो एक दफा ही डिसाइड हो जाता है कि हर आउटपुट पे क्या आउटपुट को ये डिवाइस लगनी है या इनपुट डिवाइस लगनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ एक सिक्योरिटी सिस्टम में मैं यूजर को कह सकता हूँ ये 8 दरवाजों के कनेक्टर हैं, आप 8 दरवाजों के सेंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब वो सेंसर लगाए या ना लगाए 8 के, उसका मसला है, लेकिन वहां पे लगेगा सेंसर ही। वहां पे आप आउटपुट नहीं कोई लगा सकते कि ये यहाँ से वो कहेगी कि अब
जब आपने सेंसर नहीं लगाने तो यहाँ पे कोई आउटपुट कंट्रोल कर ले, हार्डवेयर उसकी जो आपके है वो इजाजत नहीं देती. So once you design something as an input, you cannot really change it for an output. सर यहाँ पे आपने जो एक कंट्रोल लगाया हुआ है, सर कंट्रोल के आगे आपने कौन सा कंपोनेंट लगाया हुआ है? डायोड? ये वाला यस सर. इन्वर्टर है, लॉजिक इन्वर्टर. ठीक है सर. ज्यादा डार्क हो गया यार, अब ये खुद ही चेंज होता जा रहा है. सर अब तो अंधेरा हो गया, लग रहा है तूफान आ रहा है. काले बादल आ रहे हैं लगता है. चलें खैर, कर दो यार. सर अभी तक आप एक समरी दे सकते हैं दोबारा से? समरी ये है कि व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम वी स्टार्टेड विद द डिजाइन दैट वी डोंट वांट अ प्रोसेसर port to be hard coded as an output or an input. We want some way of controlling the mechanism of the port so that at when we choose we can make an output port as an output port, and when we choose we can make an output port as an input port. From the last time we studied that the output port is like this, and when we studied that the input port is like this, inverter and a big AND gate and some state catcher. State catcher दोनों का same ही है, because this is the same port which is you going to be use an input or an output. So if you want, so how can we make this configurable? How can we make it to change it according to our desire when we make complete our design? सर अब बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है. अब बहुत यार ज्यादा लाइटें जला दी हैं. ओहो, और करें करीब, और करें. पीछे वाली डार्क कोई चीज नहीं आनी चाहिए. उस हिसाब से वो अपने आप को कैमरा एडजस्ट कर रहा है, तो वो नहीं आनी चाहिए पीछे से कुछ. इसकी डायनामिक पता नहीं कहाँ से कर होगी ये यार. फ्रीक्वेंसी लाइट ब्राइटनेस कंट्रोल कैसे आ गया बीच में? ये पीछे से कुछ ना है. नीचे करके जूम कर दें थोड़ा सा बस. हाँ, यहाँ जूम करें और बस ठीक, ये ठीक है. क्या थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दें, बस ठीक है. और नहीं, दूसरी तरफ, बस ठीक है. यहाँ पे अब नजर आ रहा है ना? हेलो, जी सर, लेकिन पूरा बोर्ड नहीं नजर आ रहा. पूरा बोर्ड नहीं, अभी इसी पे फोकस करते हैं जो नजर आ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा ये भी और थोड़ा सा जूम आउट करें, ये कंट्रोल भी नजर आना. हाँ बस ठीक है, बस ठीक है. ये मैं उठा के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं. So what is happening here is that ये तो आपको याद है ना, last time this was a circuit for output port, this was a circuit for input port. Now we want to make it configurable. We want to have a control over this configuration of this port. So actually the hardware is there. There is a duplicate hardware. The hardware in the side, each microcontroller has both a hardware for input and output. So, but we only switch off one hardware and switch on another hardware. जस्ट लाइक जैसे आपने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था वो लॉजिक यूनिट करते हैं तो अरिथमेटिक यूनिट भी कोई काम करता है, लेकिन उसकी आउटपुट हम मल्टीप्लेक्सर से हम उसको मल्टीप्लेक्सर उसकी आउटपुट को हम इग्नोर कर देते हैं, डोंट केयर कर देते हैं. बड़े अरसे बाद ये लफ्ज बोला है मैंने, डोंट केयर. सेम केस हियर दैट व्हेन वी आर डिजाइनिंग we have hardware for this and this. Here we cannot use multiplexers. We use these tri-state buffers for multiplexing. So when the output this control is one, this connects becomes short circuit. Now anything I write to this output port pin, it will be available over here. But when this is short circuit, what happens to this? Because there is an inverter, what happens to this? This is open circuit.
सर ये बंद हो जाता है तो डाटा आपका इनपुट नहीं होता वापस। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं आ सकता वापस, इवन इफ सर आई रीड फ्रॉम हियर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, कंट्रोल से हम उसको कंट्रोल करें सर, लेकिन इनपुट आउटपुट जोड़ने की वजह क्या थी? कोई कभी कोई ऐसा इंस्टेंस भी होता है कि हमें आउटपुट को वापस घुमा के इनपुट में चाहिए होता है? नहीं मुझे हमजा, समझ वो नहीं आ रहा एक ही कि पोर्ट से सर कह रहे हैं कि अब आप एक ही पोर्ट से इनपुट भी ले सकते हो जब आप चाहो, जब आप चाहो तो आप आउटपुट भी ले सकते हो, जब एक ही आप पोर्ट। चाहो नहीं, जब आप चाहो नहीं, ये नहीं। जब आप जब सिस्टम डिजाइन करते हैं ना, ये देखें 8 बिट का आपने एक पोर्ट डिजाइन की है। आप फर्ज करें आपने डिजाइन करनी है, आपके पास एक प्रोसेसर, उसकी सिर्फ एक ही पोर्ट है, फर्ज करें जी सर। सिर्फ एक ही पोर्ट है। आप चाहते हैं कि एक आप एक बंदा है आपकी लैब में, उसको ये चाहिए कि ये सारी आउटपुट पोर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई 8 एलईडीज लगाने। एक बंदा और है लैब में, उसको भी ये पोर्ट मैसर है, लेकिन वो चाहता है कि मैं सिर्फ 4 एलईडीज यहाँ पे लगाऊं एज एन आउटपुट एलईडीज, और यहाँ पे मैं 4 स्विचेस लगाऊं एज एन इनपुट स्विचेस। यहाँ से आउटपुट जाए, यहाँ पे इनपुट जाए। ठीक हो गया सर। फिर आप दोबारा ला सकते हैं। तो सर ये अभी जो आपने सिस्टम लगाया है, ये आपने 1 बिट के लिए लगाया है, तो ये वाले जब आप इसको बदल 8 बिट पे एक्सपैंड करेंगे तो 8 बिट्स के ऊपर ये लगा होगा, तो फिर हमारे पास 8 कंट्रोल्स होंगे। 8 के कंट्रोल लगा होगा, 8 कंट्रोल होंगे। ठीक है। और अगर मैंने इनको कंट्रोल जो सर्किट है उसमें 8 ही कंट्रोल होंगे। अगर मैं इसको 1 1 1 कंट्रोल कर देता हूँ, ये इसका कंट्रोल है, ये इसका कंट्रोल है, ये इसका कंट्रोल है, ये इसका कंट्रोल है, और इनको मैं 1 1 1 कर देता हूँ, और इसका कंट्रोल जो है इनको मैं 0 0 0 कर देता हूँ इनका, तो ये आउटपुट डिवाइसेस बन जाएंगी, और ये वाली वायर्स जो हैं ये इनपुट बन जाएंगे। तो 8 कंट्रोल होंगे मेरे पास, क्योंकि बिट बिट वाइज सारे माइक्रो कंट्रोलर बिट वाइज कंट्रोल होता है उनके ऊपर, बाइट वाइज नहीं होता। हर बिट को इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते। तो मैं अगर ये 0 0 0 कर देता हूँ, ये 1 1 कर देता हूँ, तो ये वाली पोर्ट जो है ये मुझे एक दफा करना पड़ेगा जब प्रोसेसर ऑन करना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने एलईडी लगाने हैं। तो आप मेन में किसी लूप चलाने से पहले मैं पहले अपनी हार्डवेयर सेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे एलईडी। अब यहाँ पे मैं कोई इनपुट डिवाइस नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने हार्डवेयर में इसको ओनली वंस डायनामिकली कभी आप सॉफ्टवेयर में कभी इसको इनपुट नहीं कर देते, कभी आउटपुट नहीं कर देते, कभी इनपुट कभी आउटपुट, ऐसे नहीं कभी होता। जब आपने डिजाइन कर लिया कि हमें मुझे 4 एलईडी लगाने हैं, 4 स्विचेस लगाने हैं, और इस पोर्ट में इस जगह लगाने हैं, इस पोर्ट में इस जगह लगाने हैं, तो उसके बाद आपकी सॉफ्टवेयर उनको फिक्स करके उसी तरह से उसके ये कंट्रोल्स को सेट कर दे। तो ये ट्राई स्टेट की जो सेटिंग है वो आप सिर्फ एक बार करते हैं। जैसे अगर आपके पास 24 पिन हैं आईओ के लिए, तो आपके पास वर्सटाइल डिजाइन है। आप चाहें तो 24 को एज एन इनपुट यूज कर लें, 24 को एज एन आउटपुट यूज कर लें, 12 को एज इनपुट यूज कर लें, 12 को एज आउटपुट। हर एक का इंडिविजुअल बिट कंट्रोल होता है आपके पास। जी तो सर बेसिकली अगर मेरे पास 24 पोर्ट्स हैं तो हाँ वही जी, कंट्रोलेबिलिटी वाली बात आ गई ना, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि 24 की 24 को मैंने इनपुट रखना है, 24 की 24 का आउटपुट रखना है, या कोई कॉम्बिनेशन यूज करना है दरमियान। हाँ जी, कंट्रोल रखना, लेकिन डायनेमिकली कंट्रोल नहीं करना। नहीं हाँ, मतलब आप खुद उसको इनपुट दोगे, वो मतलब पीछे से खुद नहीं कंट्रोल हो रहा होगा, आप मैनुअली उसको शायद कंट्रोल की वैल्यू नहीं, वो दोगे। भी है। प्लस ये कि आप जब एक ही दफा सिस्टम ऑन करने का, सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले, अब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले अब सिर्फ एक दफा अपने सेटिंग कर देते हैं कि ये आउटपुट इनपुट पोर्ट होगी, ये आउटपुट आउटपुट पोर्ट। अब बार बार नहीं करते बस, क्योंकि आपकी हार्डवेयर नहीं चेंज हो सकती रन टाइम। यहाँ पे एलईडी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अब ये नहीं हो सकता कि यूजर के वो एलईडी की जगह पे मैं अब यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ। ही कैनॉट डू दैट। अच्छा तो ये बेसिकली जब आप प्रोसेसर डिजाइन कर रहे होते हो अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो तब आप ये एक ही सिंपल पोर्ट डिजाइन रखते हो इनपुट और आउटपुट के लिए, और उनके आगे की सर्किटरी भी डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोग मतलब ये आउटपुट में फिक्स जारी होती है बात है। ना, इसलिए ये तो फिक्स रहती है। जब आपका एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन बन गया है, हाँ ये जी ठीक चीजें हो गया फिक्स सर। रहती है ना, तो ये चीजें फिर एक ही दफा करनी पड़ती हैं, बार बार नहीं करते आप। ठीक हो गया सर। तो हर पोर्ट का एक कंट्रोल रजिस्टर भी है, जिसमें आप जो वैल्यू स्टोर कर देते हैं जीरोस के अगेंस्ट उस पोर्ट का
जो है ना उसको कहते हैं एक तो पोर्ट बी है ना, पोर्ट ए है। पोर्ट ए पे आप राइट करते हैं या वहां से रीड कर सकते हैं। एक इसका ये डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर भी है, जिसको ऑफ कोर्स ट्राई स्टेट ए सर्किट कहते हैं। ट्राई स्टेट ए, ट्रिस सर ये ए। समझ नहीं आया क्या मतलब ट्राई ट्राई स्टेट है क्या? ट्राई स्टेट ए है कि ये ट्रिस है, इसका कंट्रोल रजिस्टर है। तो अगर मैं कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ट्रिस ए इज इक्वल टू 0 बी, बी का क्या मतलब है? 11 0 बी, 0 B। बाइनरी में नंबर देने लगा हूं। तो इसका क्या मतलब है कि पोर्ट बी को पहली 4 इनपुट जो है उनको एज एन आउटपुट ट्रीट करो, और बाकी 4 इनपुट जो है उनको एज ए इनपुट ट्रीट करो। इसको मैं ये भी कह सकता था 0x 0f या खाली f, क्योंकि f तो बाइट में खुद ही वो 0 लगा लेगा। सर ये आपने ट्राई स्टेट पोर्ट ए के लिए आगे मतलब ट्राई स्टेट ए से आगे आपने क्या बताया, आउटपुट पोर्ट बी के लिए क्या वैल्यूज हैं? ये b का क्या मतलब है? बाइनरी 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 नंबर देना। बाइनरी फॉर्मेट में मैं 8 बिट का डाटा देने लगा। अच्छा जैसा ठीक हो गया जीरो सर। एक्स होता है, ये हेक्स फॉर्मेट में देने के लिए होता है। यार ये तो आप लोगों ने कहीं पढ़ा ही होगा सी में कि बाइनरी में कैसे देते हैं डाटा। सर हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं सर। और जो भी है सी और सी, जब भी मैं सी कहूँ खुदा के लिए उसको सी प्लस प्लस उसके अंदर ही समझा करें। ये सारी चीजों में कोई वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस वाला सीन नहीं है। ये सारा प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो दोनों में सेम है। फौरन फौरन जवाब आ जाता है, हम तो सर सी प्लस प्लस पढ़ते हैं। और भाई सर सी तो और सी हमने प्लस, सर तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ ज्यादा फोकस रखा हुआ था ना, ये बेस लेवल से हमने उसको बिल्ड नहीं किया हुआ अपने सीएस कोर्सेज के अंदर। यार आप वेरिएबल साइन नहीं करते वैल्यूज, सर करते हैं सर। तो वो सी में भी वैसे ही करते हैं यार, जैसे सी प्लस प्लस में, जावा में, हर दुनिया की लैंग्वेज में एक ही तरह करते हैं यार। अब मैं आपको कहूँ कि वेरिएबल साइन करें सी में, तो आप कहेंगे सी पढ़ी नहीं हुई है, मैंने सर जावा पढ़ी हुई सर है। नहीं सर, सर खुदा इतनी का पड़ी हुई ख्याल है सर। करें यार। हैं? सॉरी सर। सर जी इतना पता था सर, वो ठीक हो गया सर। सर इस पूरे सर्किट को आपने ट्राई स्टेट किया या फिर एक अंदर स्पेसिफिक एक रजिस्टर लगा हुआ है उसको आपने स्पेसिफिक कहा है? ये जाहिर है यहाँ पे एक रजिस्टर होगा यहाँ पे, जिसकी हर बिट कंट्रोल कर रही है। अगर ये 1 है, एक और रजिस्टर है, इसको ट्रिस रजिस्टर कहते हैं। ये भी रजिस्टर है, इसका भी एक स्टेट कैचर है, इसका भी एक अपना स्टेट कैचर है। जब इसमें मैं वैल्यू राइट करता हूं बाय गिविंग आउट दिस इंस्ट्रक्शन, इधर करें थोड़ा सा, बाय गिविंग आउट दिस इंस्ट्रक्शन व्हेन आई राइट अ वैल्यू ओवर हियर, वो इस रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। और पोर्ट ए का अगर एड्रेस है 0x जीरो 4 3 फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1, तो इसका भी एक पोर्ट एड्रेस होगा या जो भी है। इसका भी एक पोर्ट एड्रेस होता है। ये भी एक तरह का रजिस्टर है। जब मैं एक दफा इसमें कुछ राइट कर देता हूँ तो दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं। जो भी इसमें राइट किया है ये हार्ड कोड कर देता है कि कौन सी बिट्स जो है दे आर गोइंग टू बी यूज एज इनपुट, एंड कौन सी बिट है दोज आर यूज गोइंग टू बी यूज एज आउटपुट। बहुत स्ट्रांग चीज है ये, बहुत पावरफुल चीज है। सो विदाउट दिस in the beginning you only could have output port or input port, like a parallel port होती थी प्रोसेसर की। उसमें वेल डिफाइंड होता था कि ये वाली पिन जो हैं ये इनपुट के लिए यूज होती हैं, और ये वाली पिन जो हैं ये आउटपुट के लिए। यू कुड नॉट यूज देम फॉर बाय डायरेक्शनल पर्पस। बट देन microcontroller came along and they changed everything, the concept was changed. So similarly एक ट्रिस बी होगा, वो किस लिए होगा? मैं कहता हूं ट्रिस बी इक्वल टू 0 बी 0 1 0 1 0 1 0 1। फर्ज करें ये मैंने कह दिया, इसका क्या मतलब है? सर ऑल्टरनेट पोर्ट्स इनपुट और आउटपुट की तरह ट्रीट हो रही है। हाँ, अल्टरनेट इनपुट भी और आउटपुट की तरह ट्रीट होंगे। अब क्या होगा? सर पहली पोर्ट आउटपुट है, दूसरी इनपुट, फिर आउटपुट, फिर इनपुट। फिर इनपुट इसे फिर पहला आउटपुट। बिट
पहली बिट इनपुट फिर आउटपुट फिर इनपुट फिर आउटपुट। ये बिट बिट आउटपुट बिट है, बिट 0 से काउंट करें। अच्छा ठीक है, उस तरह से करना है। तो ये वहाँ आउटपुट है, ये इनपुट आउटपुट इनपुट इस तरह से। सर ये जो अब अगर रजिस्टर्स मैं हैं ये कहूँ हर पोर्ट बी इज इक्वल टू 0xff, क्या होगा? कि मैं सारी पोर्ट पे सारे वंस राइट करना चाहता हूँ, सारे इनपुट करेंगे। तो सारी आउटपुट। अब मैंने पहले ये किया ना, ट्रिस बी इज इक्वल टू 0x, ये क्या बनता है 55, वो भी 01010101 ही बनता है बाइनरी में। तो मैंने एक पिन इनपुट कर दी, एक आउटपुट कर दी, इनपुट। अब मैं अगर राइट करूंगा तो क्या होगा? तो सारे बना देंगे सर, 1 1 1। तो ये चार आउटपुट सिर्फ वन होंगी, बाकी डोंट केयर हो जाएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दे विल बी इग्नोर्ड बिकॉज मैं राइट इधर से कर रहा हूं तो इधर से आउटपुट जा रही है। बाकी जो पिने हैं वो उनके आगे ये बफर अनेबल हुआ है, और बफर को इनपुट देने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस डायरेक्शन में डाटा देता है, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता डाटा। फिर उन वाली पिन्स पे क्या इनपुट आएगी जब मैं अगर वहां से लूंगा तो, लाइक जिनको हमने जीरो कर दिया हुआ है। जिनको जीरो कर दिया हुआ, अगर मैं कहता हूं वेरिएबल एक्स विच इज द करेक्टर साइज 8 बिट वेरिएबल, इंट 8 उसको भी कहते हैं, इंट 8 इज एन 8 बिट वेरिएबल, एक्स इज इक्वल टू पोर्ट बी। सर जहां तो पर अब हमने क्या मुझे रीड होगा, एक्स विल बी इक्वल टू सम वैल्यू जो आउटपुट है वो डोंट केयर, वैल्यू डोंट केयर, वैल्यू डोंट केयर, वैल्यू डोंट केयर, वैल्यू। तो चार तो वैल्यूज रीड होंगी, डोंट केयर वैल्यू, डोंट केयर वैल्यू। तो चार वैल्यूज रीड होंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्ज करें ये मिल जाता, कोई नंबर मिल सकता है, ये जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, ये जीरो भी है, क्योंकि ये तार तो टूटी हुई है ना उस वक्त। तो हवा में से कोई वैल्यू वो रैंडमली नॉइज पकड़ लेगा, और ये जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, तो ये 8 बिट की ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर मैंने इसमें से नॉइज निकालना है तो मैंने सिर्फ ये 4 बिट पकड़नी है, तो फिर मैं इसको एंड करना पड़ेगा मुझे, बिट वाइज एंड होता है, जिससे मैं इसको 0 1 0 1 0 1 0 1 से एंड करूंगा, जो कि ताकि मुझे वी 0 0 वी 0 वी मिल जाए, ताकि बाकी वैल्यू जीरो हो जाए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक बिट वन हो एक बिट जीरो। ट्रिस ए के केस में देख लेते हैं कि क्या होगा। ट्रिस ए का ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर के किधर गया यार वो हटाने वाली चीज। ये तो अगर ट्रिस ए को मैं कर देता हूं, ट्रिस ए इज इक्वल टू 0x0f, चार इनपुट्स हैं चार आउटपुट्स हैं, विच इज एक्चुअली बाइनरी में वही चीज बन जाती है जो ये है। इसको मैं 15 भी कर सकता हूँ, इक्वल टू 15, क्योंकि खैर ये बात हमने पहले भी कई दफा की। अब मैं कहता हूँ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू पोर्ट ए, तो मुझे वैल्यू जो एक्स में मिलेगी, एक्स विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क वैल्यू 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 वैल्यू। ये वाली वैल्यूज जो है ना, ये चूंकि इनपुट पोर्ट से मैं रीड कर रहा हूँ, सॉरी ये इनपुट है, बाकी आउटपुट है, आई एम सॉरी, जीरो का मतलब इनपुट। तो वैल्यू 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 वैल्यू, डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। तो चार बिट्स तो होंगी मेरे पास सही, जो मुझे पोर्ट से मिलेंगी। ये चार जो है ये मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, डोंट केयर में, क्योंकि ये आउटपुट करने के लिए ये वाला पार्ट। अगर मैंने इनको इस वैल्यू किसी वैल्यू से कंपेयर करना है,
तो मैं पहले इनको फिर 0 करूंगा, इसको मास्क कर दूंगा, मास्किंग इसको पढ़ेंगे हम। देखो 1 1 1 1 0 0 0 0 से मास्क करेंगे तो मुझे वैल्यू 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 0 0 0 0 मिल जाएगा। अब अगर मैं तो इसको ये क्या चार किया है? है, फिर ये आपने क्या किया, आप इसका इसको मैंने क्या है? x इज इक्वल टू एंड कर दिया, x इज इक्वल टू एंड 0f, x को एंड किया, बिट वाइज एंड किया 0f के साथ, f0 के साथ, सॉरी। तो इसमें जो आपकी वैल्यू और जिसको आप वी लिख रहे हैं वो वन ही है ना, आपने उसको वी लिख दिया। वी कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग के आउटसाइड वर्ड में क्या है, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी है, 0, इसलिए मैंने वी लिखा है। तो आउटसाइड सर वर्ड में कोई स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे स्विच ऑन है तो सारी वैल्यू 1 होंगी, अगर सारे स्विच ऑफ है तो सारी वैल्यू 0 होंगी। तो ये कोई भी वैल्यू वी की हो सकती। तो सर जो हमारा मास्क है वो तो वही वैल्यू होनी चाहिए ना, फिर अगर हमने उसको ऐड करना है उसके साथ तो। उसको 1 के साथ, वी को 1 के साथ एंड करेंगे तो क्या आता है, 1 एंड विद वी, सर सर अगर वी वी आएगा। 1 एंड विद वी क्या आएगा, ठीक है वी आएगा सही। हाँ। 0 एंड विद क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, जीरो। 0। सर ये जो आपका रजिस्टर होता है ये हर तो ये पोर्ट मैंने को ये वाले इंस को मैंने निकाल दिया अपनी जगह से, इसको इस तरह से एंड करूंगा ना, मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह से करते हैं, तो मुझे ये मिल जाएगी। अब ये वैल्यू भी मुझे सही तरह अभी नहीं मिली, इसको मैं शिफ्ट राइट भी कर सकता हूँ 4 दफा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1, तो वी 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 वी। और शिफ्ट राइट कर दिया मैंने, शिफ्ट राइट 4 टाइम्स, तो ये मुझे मिल गया। उससे अब ये मुझे फायदा हुआ कि अगर मैं एक्स को कंपेयर करूंगा 15 के साथ, अगर सारे 1 है तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू कहां तक वेरी कर सकती है, सारे जीरोज हैं तो ये वैल्यू होगी 0, सारे वंस हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, बाइनरी डेसिमल में ये वैल्यू क्या होगी, सारे वंस हैं, 4 वंस किसके बराबर होते हैं डेसिमल में, 4 वंस इन डेसिमल, एनीवन, अब्दुल्ला। 15 सर 15। हाँ जी, 15 नहीं 15 के 15 नहीं बराबर सर। हाँ है, 15 ठीक है। कभी हाँ कभी ना, अरे सर 15 ही है, वो गलती हो गई। 15 हो जाएगा। तो ये 15 के वैल्यू मैं इसको डेसिमल में भी कंपेयर कर सकता हूँ, बाइनरी में भी कंपेयर कर सकता हूँ। आई कैन चेक आउट के सारे 1 है, कौन सा 1 है, इफ इट इज दिस इज इक्वल टू 1 इसका मतलब ये वैल्यू 1 है, बाकी सारी 0 हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 2 इसका मतलब ये वैल्यू 1 है, बाकी सारी 0 है। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 इसका मतलब ये वैल्यू 1 है, बाकी सारे 0 है, or so on. So I, by using these, this is very simple. On a byte level, you have to do a lot of bit shuffling around. उनको 0 भी कुछ को करना पड़ता है, कुछ को चेंज ओवर भी करना पड़ता है, कुछ को इधर करना पड़ता है, कुछ को उधर करना पड़ता है। तो बेसिकली दिस इज द सर आइडिया। हाँ जी बताएं। सर ये आपने जब मास्किंग की थी सर उसके बाद आपके पास जीरोस आते गए थे, तो फिर शिफ्ट राइट करने की जरूरत क्या थी आपको? शिफ्ट राइट करने की जरूरत कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये वरना सर लेकिन ये कि एक्स्ट्रा। अगर ये सारे वंस हैं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 240। सर इट डजंट मेक सेंस। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो 240 का क्या मतलब है, रीडर को क्या पता है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 15। उससे जो है ना, वो अगर सी आउट करूंगा 15 को तो यूजर थोड़ा सा भी अगर उसको पता है बाइनरी नंबर 0 से 15 तक के पता है कि किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, उसको पता लग जाएगा कि 15 से का मतलब कि सारी वैल्यूज 1 है। अगर 240 मिलेगा तो सारी वैल्यूज 1 है, तो वो जरा समझने के लिए उसको मसला होगा, अनलेस उसको 8 बिट की कन्वर्जन आती हो। तो ये 4 दफा इधर शिफ्ट करने से आपकी कन्वर्जन आसान हो जाती है। 15 का मतलब एक 1 है, 1 का मतलब है एक ये वाला 1 है, 2 का मतलब है ये वाला 1 है, 4 का मतलब है ये 1, 12 का मतलब है ये दोनों 1 है, विच इज सी। तो इस तरह से वो देख के किसी थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि आउटपुट को सी आउट करेगा तो उसको पता लग जाता है कि इसका क्या मतलब। ये सारे वंस हो कैसे सकते हैं? आप अगर डॉट के अंदर कुछ वैल्यूज वन भी आई हैं
0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही रहेंगे, तो वो आखिरी ये 4 बिट तो हमेशा 0 ही ये रहेंगे। ये सारे बिट 1 का यार मतलब है सिर्फ ये चारों मान, अच्छा इनकी ठीक अब है, मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक हो गया सर। ये सारे 1 है तो ये कितना किसके बराबर है? 240 के बराबर। 240 के बराबर होगा, ठीक। हाँ, सर ये जो 16 आपने रजिस्टर ये लगाया हुआ है, ये 15 है, 15 को 4 टाइम्स शिफ्ट करें तो ये 16 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 240। सर हाँ जी, ये आपने जो किया x इज इक्वल टू पोर्ट ए, इसका क्या हाँ मतलब, इसमें पोर्ट ए में कोई वैल्यू पड़ी हुई वो x में आ रही है, हाँ, जो इनपुट आ पोर्ट रही ए है की पोर्ट वैल्यू में पड़ी हुई है नहीं, जो आउटसाइड वर्ड से जो पोर्ट ए के ऊपर लॉजिक लेवल सेट हुए हैं उस वक्त, यहाँ पे अगर ये देखे ना, जब वो इसको रीड किया तो यहाँ पे जो लॉजिक लेवल सेट हुआ हुआ, यहाँ पे मैंने स्विच लगाया हुआ है एक, ठीक है। जी सर। यहाँ पे मैंने स्विच लगाया हुआ है, ये वाला इनपुट पोर्ट पे दाहिर है मैंने स्विच लगवाया होगा। तो जब मैं रीड कर रहा हूं तो ये वहां पे या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, स्विच है 1,0, ये वाला इसकी वैल्यूज हैं, वैल्यू सेट ये 1 या 0। तो जब ये 0 या 1 होगा वो यहां से आया, अब मैं चूंकि रीड कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू पोर्ट ए का मतलब है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, आई एम रीडिंग फ्रॉम द पोर्ट, मीन्स के इस पोर्ट के ऊपर से बिट्स उठाओ, जो भी एक्सटर्नल बिट्स हैं उनको एक्स वेरिएबल जो कि रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर है, एक रजिस्टर एक्स, उसमें डाल दो, तो ये वाली वैल्यू जाएगी। अब यहां इधर नहीं जा सकती, ये ऑफ है क्योंकि मैं एक्स में रीड कर रहा हूं, तो ये बेसिकली जब राइट करता हूं तो ये 1 होता है, ये इसको देखें, और जब रीड करता हूं तो ये इनेबल होता है। तो ये 1 1 है अगर, तो यहाँ से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से D0 से कनेक्ट होगा, D0 से कनेक्ट होके ये यहाँ से ये प्रोसेसर के अंदर जाएगा और इसमें एक्स रजिस्टर में चला जाएगा, ये वह उसका रास्ता बन जाएगा। ब्लू किधर है मार्कर? ब्लू मार्कर। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। उस वक्त जहां पे कोई एलईडी लगी हुई है, कोई और डिवाइस लगी हुई है, तो उससे तो डाटा नहीं रीड हो सकेगा, एलईडी की तो रीड करने से उसकी कोई वोल्टेज नहीं आपको मिलेगी, तो वो डोंट केयर एक तरह से हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिलता है जब आप रीड करेंगे, ये वाला आपका रास्ता खुल जाता है। कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ रास्ते खुल जाते हैं, हार्डवेयर में और ट्राई स्टेट बफर ये काम करता है। कुछ रास्तों को खोल, हर वक्त यही काम होता है, प्रोसेसर के अंदर रास्ते खुलते हैं, रास्ते बंद होते हैं, शाहराहें खुल जाती हैं, शाहराहें बंद हो जाती हैं, पूरी की पूरी बस जो है 16 बिट की पूरी शाहरा बंद हो जाती है, खुल जाती है इकट्ठे ही। तो दिस इज व्हाट इज ऑल द टाइम हैपनिंग इन द प्रोसेसर, एंड थैंक्स टू दिस ट्राई स्टेट बफर्स, this is how it happens. So this is how it is. So when I'm reading this switch का status डायरेक्टली मुझे इस बस या इस वेरिएबल x की बिट नंबर पर्टिकुलर बिट पे मुझे मिल जाता है, जिससे वो कनेक्टेड। नाउ आई कैन डू whatever I want, millions of things I can now do in the software। कनेक्शन आउटसाइड वर्ड से मिल जाए तो कमाल ही हो जाता है। So that's the basic idea. So this is called configurable port. Basically, there are two ports for each configurable port. One is TRIS port, where you store the information. How do you want your port to act, either input or output? And other is a port where you read or write. So दो ports उसके साथ लग जाते हैं। और ये चूंकि पोर्ट इंटरनल पोर्ट है, तो इसको प्रोसेसर की आउटपुट पे इसकी पिने शिने नहीं आती, तो प्रोसेसर के अंदर इस सर्किट बढ़ जाता है, लेकिन बाहर का सर्किट वही रहता है। असल मसला तो बाहर का सर्किट है। वी डोंट वांट टू गो बियॉन्ड सर्टेन नंबर ऑफ पिन्स ऑन ए आईसी। 40 पिनों का आईसी है तो उससे नहीं चाहते कि वो बड़ी हो जाए। जहाँ 40 पिन की आईसी की जरूरत है वहाँ 40 पिन का आईसी चाहिए। जहाँ 8 पिन का आईसी की जरूरत है वहाँ 8 पिन का आईसी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ट्रिस पोर्ट भी होगी, पोर्ट ए भी होगी, पोर्ट बी भी होगी, हो सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
Okay, I think we'll end today. We'll end सर here. यहाँ पर जो सर यहाँ पर जो ट्रिस ए और ट्रिस बी है वो दो अलग अलग पोर्ट्स के है ना, यानी कि हर एक पोर्ट का एक ट्रिस रजिस्टर होगा। हाँ, एक ट्रिस होगा, एक उसका एक्चुअल डाटा रजिस्टर होगा, एक कंट्रोल रजिस्टर, डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर होगा, एक उसको डाटा रिपोर्ट कहते हैं, एक डाटा रजिस्टर, एक कंट्रोल रजिस्टर। जी सर, बेहतरीन। और सर कंट्रोल रजिस्टर को हम ट्रेस कहते हैं। ट्रिस कहते हैं इन माइक्रो कंट्रोलर, इसको ट्रिस कहते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर में इसको ट्रिस कहते हैं, किसी और माइक्रो कंट्रोलर में कुछ भी कह सकते हैं। कुछ माइक्रो कंट्रोलर में जब आप इनपुट करते हैं तो वो खुद ब खुद ही उसको ट्रिस ट्रिस कहने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही उसको पता होता है कि ये मैं इनपुट कर रहा हूँ, तो वो खुद ही डायनामिकली उस वक्त वहां पर वो इंस्टॉल कर देता है, ट्राई स्टेट बफर ले आता है और खुद ही वहां पर वो लैथिज ले आता है। लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं कई एप्लीकेशंस में, तो विल नॉट टॉक अबाउट दिस। तो सर आपके प्रोसेसर के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर, एक कंट्रोल रजिस्टर्स हो गए पिक के अंदर उसे ट्रेस कहते हैं, और एक डेटा रजिस्टर्स होते हैं जो ऊपर डाटा वगैरह मतलब हाँ स्टोर बिल्कुल करके ऐसे, रखते हैं। ठीक बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही हर रजिस्टर के हर पोर्ट के अगेंस्ट दो रजिस्टर्स अभी अभी तक। आगे जाके और भी रजिस्टर हर पोर्ट के अगेंस्ट हम देखेंगे, अभी तक हमने यही पढ़ा। अभी तक ठीक हो गया सर ठीक हो गया। आगे जाके एक या दो और रजिस्टर आ जाते हैं बीच में, जो बाद में पढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी फिर अगली क्लास है। सर और क्या, कल वाली लैब ऑन कैंपस होगी या ऑनलाइन ही होगी? बिकॉज अभी कोई तक तो नोटिफिकेशन नहीं आ यूनिवर्सिटी रही की थी। तरफ से कुछ नहीं है, तो आई वुड assume कि वेरी सून विल गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आई एम assuming it will be offline, so be ready, bring your kit tomorrow। जो डीएचसी की किट है ना, वो अपने साथ लेके आए, हम उसमें ना आपके वही सामान डाल देंगे जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर किट का है। तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो किट आपके पास ही रहेगी। अगर आप चाहें उसके ऊपर अपना बड़ा सा नाम लिख दें मार्कर पे, आप उसको लैब में भी छोड़ के जा सकते हैं, साथ भी लेके जा सकते हैं। तो अगर ऑफलाइन हो गया तो आप उसको, ऑनलाइन हो गया तो साथ ले जाएं, घर जाके करें का सारा काम। हमने तो दोनों तरीकों से प्रिपेयर किया हुआ है। सो although it doesn't mean I support one way or the other, I am totally in favor of offline, I'm totally in favor of offline, I hate online। तो ये ना समझें कि सर मुझे शौक है। हाँ जी, सर अगर कैंपस वो कहते हैं कि मंडे से ओपन होना है, तो हमारी जो थर्सडे वाली लैब्स हैं वो ऑनलाइन फिर चलेंगी? थर्सडे की जो लैब है। जो कल है, हम्म। अगर मंडे से यस ओपन हो वही रहा होगा है तो नेक्स्ट। कल वाली लैब भी छुट्टी हो जाएगी, अच्छा, कल वाली नहीं होगी फिर नहीं कि होगी। अभी ट्यूसडे वालों की नहीं हुई ना? हाँ फिर नहीं होगी, फिर एक वीक बीच सही है, में ब्रेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। और अब आप दुआ करेंगे कल मंडे से शुरू हो, मुझे पता है ना। जी सर नहीं करें नहीं दुआ सर, सर। नहीं नहीं, ओके, हम तो ओके, जल्द से जल्द कैंपस आना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज, सी यू टुमारो, सी यू Okay, टुमारो। sir.